کہ بارشوں سے ٹھنڈے ہوئے موسم میں سیاسی پارا ہائی ہو گیا۔ کراچی میں اپوزیشن کے بڑوں کی بیٹھک، میڈیا بریفنگ میں حکومت کو نشانے پر رکھا۔ احسن اقبال بولے، عمران خان کے پیارے احتساب سے پاک ہیں۔ جو عمران خان کی چھتری تلے آیا، احتساب پروف ہو گیا۔ نوید قمر نے اپوزیشن کو مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی تجویز دی تو فرحت اللہ بابر نے وفاقی پارلیمانی نظام سے چھیڑ چھاڑ کو خطرناک قرار دے دیا۔ پانی سے ڈوبے کراچی والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچنے والے اپوزیشن کا وفد بلاول ہاؤس جا پہنچا، جہاں پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت دیگر کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی، جس کے بعد اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس کا فیصلہ ہوا۔ ملاقات میں کراچی سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جس کے بعد دعاندار سیاسی دور چلا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ طے ہوا ہے کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں اپوزیشن حکومت کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرے گی۔ رہبر کمیٹی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی میٹنگ بھی کل ہو رہی ہے، جس میں شاید تفصیلات آئیں گی، لیکن اب ہم وقت آ گیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی تاریخ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے تفصیلات کل والی میٹنگ میں یا اس کی آپ کو تاریخ بھی دی جائے گی۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے بھی پہلے کراچی والوں سے اظہار یکجہتی کیا، پھر حکومت پر اپنا ہاتھ صاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام کو معاشی بدحالی میں ڈبو دیا ہے، ایسی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں کہ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی حکومتی شخص کا احتساب ہوا ہو۔ اس حکومت کی نا تجربہ کاری، نا اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کی سیاست پراگندا کی جا رہی ہے، ملک میں انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مشکل وقت ہے، کراچی والوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، چاہتے ہیں حکومت سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کے نقصانات کا ازالہ کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ بارشوں نے کراچی میں تباہی مچا دی، ڈوبے شہر پر سیاست نہیں کرنا چاہیے۔ وفاق بتائے سندھ کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کہاں ہیں۔ مزید بولے کہ کراچی کی روشنیوں کو کسی صورت مدھم نہیں ہونے دیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کے ہمراہ کراچی پہنچے۔ کراچی آمد پر اپوزیشن لیڈر نے ایئرپورٹ لاؤنج میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ کراچی کے حالات دیکھ کر یہاں آیا ہوں، بارشوں نے شہر کو بہت متاثر کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ کراچی کو ابھی تک جتنا بنایا نون لیگ نے بنایا۔ میگا پروجیکٹ شہر میں نون لیگ کی جانب سے شروع کیے گئے اور ابھی تک ایسے بہت سارے منصوبے ہیں جنہیں نواز شریف نے شروع کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ وقت مخالفت برائے مخالفت کا نہیں ہے۔ جن کے گھر، فصلیں اور مال مویشی تباہ و برباد ہوئے انہیں معاوضہ دیا جائے۔ امیر اور غریب سبھی سیلاب کی تباہ کاری سے پریشان ہیں۔ ہمارا یہ پیغام ہے، قائد میاں نواز شریف کا یہ پیغام ہے، مسلم لیگ نون کا یہ پیغام ہے، پاکستان کے عوام کا یہ پیغام ہے کہ وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کی بھرپور مشاورت سے یہاں پر بھرپور ترقیاتی کام یہاں پر شروع کرنے چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے، وہ فنڈز کہاں ہیں؟ وفاق نے کراچی کے لیے اربوں روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ فنڈز کہاں ہیں؟ وفاق نے وعدے کے مطابق فنڈز مہیا کیے ہوتے اور سیاست نہ کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وفاق نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ بعد ازاں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے قائد آباد کا دورہ کیا اور بارش سے متاثرہ افراد کے کیمپ پہنچے۔ شدید بدنصیبی کے باعث شہباز شریف گاڑی سے نہیں اترے، انہوں نے ہاتھ ہلا کر متاثرہ خاندانوں کو تسلی دی۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں سرگرم، اراکین ایک مرتبہ پھر حکومت مخالف تحریک کے لیے کل سر جوڑیں گے۔ رہبر کمیٹی کا اجلاس اکرم درانی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوگا، آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور ہوگا۔
बिखरी अपोजिशन एक मरतबा फिर मुत्तहिद होने के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगाएगी। गिले शिकवे भी होंगे, हुकूमत मुखालिफ सफबंदियां भी। दोनों बड़ी जमातें दीगर अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगी और आगे मिलकर चलने बारे तजावीज़ देंगी। रहबर कमेटी के इजलास से कबल दोनों बड़ी जमातों की क़यादत की आपस में भी मुलाकात हुई और मौलाना फजल रहमान से भी राब्ते में है। इजलास अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा, जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने पर तजावीज़ ली जाएंगी। पीपल्स पार्टी नून लीग दीगर जमातों को तजावीज़ देंगी। इजलास में APC के एजेंडा और मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर किया जाएगा। बैठक में हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने वाली BNP मैंगल भी शरीक होगी। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और BNP मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान राब्ता हुआ। इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पानी की आंखें खोल दी तो हुकूमत नालों से तजावुजात खत्म कराने का मिशन लेकर निकल पड़ी। पहले मरहले में कराची के गुज्जर नाले पर बने शेड्स, चबूतरे और दीगर तजावुजात को मिसमार किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि मकानात को नहीं गिराया जा रहा। बारिशों के दौरान कराची से पानी की निकासी ऐसा चैलेंज बना कि अब सिंध हुकूमत ने नालों से तजावुजात खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया। मुख्तलिफ मुकामात पर नालों से दुकानों के शेड्स और दीगर तजावुजात को गिराया गया। एंटी इंक्रोचमेंट की टीम, मशीनरी, पुलिस, रेंजर्स और के इलेक्ट्रिक का अमला गुलबर्ग में गुज्जर नाले पहुंचे। असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल ने कहा ऑपरेशन मरहलावार किया जाएगा। पहले मरहले में हम सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स को रिमूव करेंगे और वो हम कर रहे हैं। इससे 3 पॉइंट्स पे काम चल रहा है। नला स्टॉप से कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन और ज़ियाउद्दीन से लारी रिवर। शहरियों ने भी मिले जुले रुझान का इज़हार किया और कहा कि गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा होना चाहिए। जबकि वहाँ के मकीनों का कहना था कि हमारे पास खाने को नहीं तो हम घर का किराया कैसे देंगे। हम ये कह रहे हैं हमें कोई प्लाट मिले जाए जहाँ हम सामान लेके जाएं। अब कहाँ जाएं? रोडों पे जाके बैठे, कहाँ बैठे? ना हम किराया भर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, खाने का है नहीं, हम किराया कैसे भरेंगे? पहले इनका रहने को कोई बंदोबस्त करे। छोटे छोटे बच्चे गरीब आवाम है जो नदी पे बैठी हुई, कहाँ जाएगी? कोई लाखों के हिसाब से बैठे हुए। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना कहीं बैठने की जगह तो दे। इंसान झुपड़ी लगा के बच्चों को लेके बैठ जाता है। बिल्कुल सही हो रही है कार्रवाई, इससे कराची के लोगों को फायदा होगा। गुज्जर नाले की जो कार्रवाई हो रही है ना, बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि बड़े घरों में सारे जो ऊपर के घर हैं उनमें पानी जाता है। जब भी ओवरफ्लो होता है, पूरा फुल होता है, 4-4 फुट पानी खड़ा होता है रोडों के ऊपर बारिशों के मौसम में। सबके घरों में मोटरें खराब, पूरे फर्नीचर खराब सारा। और ये नाले पे तो तजावुज़ पे तो बनना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और बेहतरीन काम है ये हुकूमत का, ये होना चाहिए। बहुत मुश्किलात है आगे, जो बारिशें होती है और यहाँ से गुजरना हमारे लिए आज़ाब होता है, लोगों के लिए सब परेशान होते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वजाहत की कि ऑपरेशन के दौरान मकानात को गिराया नहीं जा रहा, ताहम सुबह से जारी ऑपरेशन को जुमेरात की सुबह तक के लिए मौखर कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पाए तकमील तक पहुँचना चाहिए ताकि बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से बआसानी निपटा जा सके। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। कराची में कई इलाकों से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। नया नाजिमाबाद मुसलसल नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है तो गुलिस्तानी जौहर में बड़ी तिजारती और रिहायशी इमारत के बेसमेंट में 10 फीट से ज्यादा पानी मौजूद है। शहर के दीगर कई इलाकों की गलियां और सड़कें भी जल थल हैं। में 10 शहर कायद के बासियों की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक हफ्ता कबल बरसने वाली बारिश का पानी अब तक कई इलाकों में खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही हैं बल्कि शहरियों के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 के रिहायशी और तजारती इमारत में 10 से 15 फीट बारिश का पानी बेसमेंट में घुस आया, जहाँ 250 से ज्यादा दुकानें और फ्लैटों में लोग रिहाइश पजीर हैं। इमारत के रिहायशियों का कहना है कि पानी की निकासी के इदारों से राब्ता किया लेकिन हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया, इसलिए अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने का अमल शुरू किया है। बेसमेंट में पूरा पानी है, हमारे सारे ट्रांसफार्मर, सारे मीटर रूम सारे नीचे हैं। हमारे 10 दिन से हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है। हम खुद परेशान हैं, कहाँ से खाएं कहाँ से पिए। कोई इदारा यहाँ पे नहीं आ रहा कि कहीं पूछने भी आ जाए कि भाई यहाँ पे कितनी परेशानी है आपको। ये हम लोगों ने चंदा जमा कर कर अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं और ये सारे कोई एक इदारा भी, NDMA वालों को भी हम लिखवा कर आए हैं, वो 2 दफा विजिट कर कर और सब लोग वापस चले जाते हैं। मदद के लिए अभी तक हमारी कोई भी नहीं आया। यहाँ 10 दिन हो गए, बहुत परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कारोबार सबका रुका हुआ है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है।
ये हालात आप देख ले, पूरा जंगल बना हुआ है। शहरियों ने कहा कि बारिश के पानी से परेशान तो थे ही, ऊपर से के इलेक्ट्रिक भी हम पर जुल्म ढा रही है। एक हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी हमारे अपार्टमेंट की बिजली बंद है। इधर नया नाजमाबाद भी मुसलसल नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। गलियों के साथ साथ घरों में भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से मकीन घरों में मैसूर हो गए। नया नाजमाबाद के रहायशियों का कहना है कि उनके पैदल और गाड़ियों में चलना अब उनके लिए ख्वाब बन गया है। पानी की नक्काशी के लिए पाक फौज काम कर रही है, दूसरा कोई इदारा नहीं पहुंचा। औरंगी टाउन, डिफेंस, क्लिफ्टन, खारादार, न्यू कराची, यूसुफ गोड समेत शहर की दीगर कई इलाकों से भी पानी की नक्काशी नहीं की जा सकी। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करना मुजाहिरीन को महंगा पड़ गया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुदियत में 22 नामजद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीबीसी के दफ्तर के करीब कैमरों की फुटेज भी मंगवाई गई। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मुजाहरा नाकाबिले कबूल। पानी बंद है तो एहतजाज बनता ही नहीं। निकासी का निजाम अगर ठीक नहीं तो इसमें हमारा क्या कसूर। समंदर किनारे बसे हो, डूबना तो बनता है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के सामने मुजाहरा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीबीसी दफ्तर पर एहतजाज करने वाले 22 नामजद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दरख्शाह थाने में कार सरकार में मुदाखलत पर दर्ज किया गया। मुकदमे में धमकी और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई। मुकदमा सिक्योरिटी सुपरवाइजर सीबीसी की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। मतन में कहा है कि शरपसंद अफराद ने दफ्तर के शीशे तोड़े, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और अमले को धमकियां दी गई। मतन के मुताबिक मुजाहरा करने वाले अफराद के साथ शरपसंद अनासिर थे। सीबीसी के दफ्तर के करीब कैमरों की फुटेज मंगवाई गई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए गैर एलानिया लोड शेडिंग और अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से किए गए मुआहदों की पासदारी न करने पर भी एक्शन लेते हुए इनकी तफसीलात हासिल करने की हिदायत कर दी है। के इलेक्ट्रिक पर अवाम से ओवर बिलिंग की मद में से अरबों रुपए की रकूम हत्याने का भी इल्जाम है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। इससे कबल के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ था, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहर कायद के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹1.09 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की अहम बैठक। कारकर्दगी के लिहाज से बदतरीन नताइज फराहम करने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनी के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने की असूली मंजूरी दे दी गई। के इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। बिजली टैरिफ बढ़ाने के फैसले का इतलाक 1 सितम्बर से होगा, जबकि अक्टूबर 2020 के बिजली बिल में इजाफा भी शामिल होगा। इजाफा 2016 से 2019 के दौरान सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। दूसरी जानब वजारत खजाना की जानब से जारी एलामिया में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 4.7 अरब रुपए की सब्सिडी भी देगी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रोजवेल्ट होटल के लिए $14 करोड़ 20 लाख की मंजूरी भी दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक रकम कर्ज और वाजबात की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। जलकर राख होने वालों की कहानी। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस हल होने के करीब पहुंच गया। फैक्ट्री में आग कैसे लगाई गई, अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल तौर पर सुन लिए। मुल्जिमान के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। केस का फैसला 17 सितंबर को सुनाने का ऐलान कर दिया। कपड़े की फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेज में जलकर राख होने वालों के बुरसा को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई। साने में मुलव्वस मुल्ज़मान अपने अंजाम के करीब पहुंच गए। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत हुई। फरीकैन के मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुल्ज़मान के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। केस का फैसला इस महीने की 17 तारीख को सुनाया जाएगा। इससे कबल मुल्ज़मान के खिलाफ सिटी कोर्ट से केस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत मुंतकिल किया गया था। फरवरी 2017 में MQM रहनुमा रऊफ सदीकी, रहमान भोला, जुबैर चरिया और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। फैक्ट्री मालकान ने आतिशज़दगी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। केस में मुल्ज़मान के खिलाफ 400 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कराए गए। बुरसा को उम्मीद है कि 9 साल बाद उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट का लदम करार देने से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए शुगर मिल्स मालकान को नोटिस जारी कर दिया, जवाब भी तलब कर लिया। नुमा सुहेल अनवर सियाल की रहायशगाहों पर नैब ने छापे मारे, जहां से अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। नुकसान पहुंचाने वाले बड़े मगरमच्छों के खिलाफ नैब का घेरा मजीद तंग होने लगा। आमदन से ज्यादा असासे बनाने के इल्जाम में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की रिहायशगाह पर छापे मारे गए। हुकाम ने अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली हैं। टीम ने पहली कार्रवाई आबाई घर फरीदाबाद में की, जहां सूबाई वजीर मौजूद नहीं थे। जराये के मुताबिक नैब टीम ने 4 घंटों से ज्यादा घर की तलाशी ली। टीम ने सुहेल अनवर सियाल के मुबैना फ्रंटमैन और बाकरानी TMA के मुलाजिम असद खरल की बाकरानी रोड की रिहायशगाह पर भी छापा मारा। असद खरल की गैर मौजूदगी पर उनके अहल खाना से पूछगछ की गई। जराये के मुताबिक तीसरी कार्रवाई सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की लाड़काना शहर में वाक़ रिहायशगाह पर की गई, जहाँ नैब टीम ने तलाशी के दौरान अहम दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। छापों पर रद्द-ए-अमल देते हुए सुहेल अनवर सियाल का कहना था कि आमदन से ज्यादा असासजात केस पर हाई कोर्ट से जमानत मिली है। ये बेनामी जायदाद नहीं, मेरे वालिद की FBR में डिक्लेयर्ड जायदाद है। मेरे वालिद का इंतकाल 2018 में हुआ था। मेरे वालिद जिंदा नहीं है। उनकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी को बेनामी ज़हर किया जा रहा है। नैब की टीम को कोई दस्तावेज नहीं मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अनवर मजीद की तिबी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने अनवर मजीद का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इलाज कराना अनवर मजीद का बुनियादी हक है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक और केस में तहकीकात शुरू कर दी हैं। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बैरून मुल्क चावल की बरामदात में मुबैना ट्रांजैक्शन की शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ की मुबैना कंपनी तारिक मीर एंड कंपनी के लाइसेंस पर कारोबारी तफसीलात तलब कर ली गई है। नैब ने तारिक एंड कंपनी से बरामदात का कारोबार करने वाले तमाम अफराद तलब कर लिए हैं। नैब ने मोहम्मद उस्मान और अनवर रहमान समेत दीगर अफराद शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। इससे कबल कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट से मुतल्लिक केस में ख्वाजा आसिफ नैब के सामने पेश हुए थे। ख्वाजा आसिफ से नैब की जानिब से तफसीलात तलब की गई थी कि कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में इनके अहल खाना ने कितनी सरमायाकारी की। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर को तलब कर लिया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने के हवाले से तहकीकात जारी है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस पर जामे ब्रीफिंग के बाद इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई थी। नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ 40 करोड़ से ज्यादा मालियत के असासजात के शवाहिद इकट्ठे किए हुए हैं। हाय बाय बाय सिंथिया, पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के सियासतदानों पर कीचड़ उछालने वाली अमरीकी शहरी को वापस जाना होगा। वजारत दाखिला ने वीजे में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खवातीन कैदियों की रिहाई के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की है। उन्होंने मौत की सजा पाने वाली खवातीन के मामले का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जायजे के लिए रिपोर्ट तलब की है। उनका कहना था कि फैसला वजारत इंसानी हकूक, अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफर के साथ मुशावरत के बाद किया है। वजीर आला पंजाब ने भी अपनी हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पेश कर दी। बोले, तारीखी ऑपोजिशन मिली लेकिन हमने फिर भी अपना काम जारी रखा। अवाम से किए तमाम वादे पूरे किए। 1300 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। उनका मजीद कहना था कि 7 नए डैम, 7 नई यूनिवर्सिटीज बनाने जा रहे हैं। पंजाब असेंबली ने तारीखी 58 बिल मंजूर किए और इंस लाइन का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हो चुका डेरा गाजी खान और राजनपुर के कोहे सुलेमान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं
ان کے اندر بھی ہم نے جو ڈیمز ہیں ان کی اسٹڈی سٹارٹ کر دی ہے. 13 درے ہیں, ان کی اسٹڈی سٹارٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ 4 ڈیم ہم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کو 99% ادائیگی ہم نے کروا دی ہے جو شوگر مل سے, اور ایک نیا انشاءاللہ ایکٹ ہم شوگر مل کے لیے لا رہے ہیں جس میں 50 لاکھ تک جرمانہ کیا جا سکے گا. تمام اضلاع کے اندر صحت انصاف کارڈ کا نفاذ ہو چکا ہے اور 70 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے. پنجاب کے اندر جو کرونا کے دنوں میں ہمیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا, ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں تھی. کوئی 50 سے 60 کے قریب ہماری پر ڈے فیسلٹی تھی, اس کو الحمدللہ بڑھا کے 17,000 تک کر دیا گیا ہے. اساتذہ کے تبادلوں کو ای ٹرانسفر کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے. 22 اضلاع کے اندر انصاف آفٹرنون اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور صوبہ بھر میں 1272 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے زیرو فائنینشیل امپیکٹ کے اوپر. چکوال, میاں والی, مری, بکھر, راولپنڈی, لیا اور ننکانہ کے اندر 7 یونیورسٹیوں کا قیام. اگر میں کہوں کہ تاریخی اپوزیشن ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا. شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی میں کبھی اتنی اپوزیشن ہوئی ہو. پولیس میں 10,000 بھرتیوں کی اپروول دی ہے اور 550 نئی گاڑیوں کی اپروول دی ہے. حکومت نے توانائی کے متبادل ذرائع پر کام شروع کر دیا. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں. 120 الیکٹرک بسیں اسی سال امپورٹ کریں گے. اعلان کیا کہ اگلے سال سے ان بسوں کی اسمبلنگ شروع ہوگی. کوشش ہے اسلام آباد پہلا شہر بنے جہاں الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ ہو. ملکی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی فی تولہ اور 10 گرام قیمت میں 2500 روپے کی غیر معمولی حد تک کمی ہوئی ہے. بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس 24 کیرات سونے کی قیمت میں $31 کی کمی ہوئی اور عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت کم ہو کر $1958 کی سطح پر آ گئی, جس کے بعد ملک بھر کے صرافہ مارکیٹوں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی. اوپن مارکیٹ میں فی تولہ سونا 2500 روپے تک سستا ہو گیا. صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت کم ہو کر 1,15,200 روپے تک آ گئی, جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت بھی گھٹ کر 98,765 روپے کی سطح پر آ گئی. آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر پھنکارتے خطرناک مودی کی سانس پھولنے لگی. پاکستان کی مشرقی سرحد پر جنگی جنون میں مبتلا مذاکرات کی میز سے بھاگتی مودی سرکار کو بھارتی جنتا پاکستان سے مذاکرات کے لیے مجبور کرنے لگی ہے. بھارت ایک وقت میں چین اور پاکستان کے ساتھ محاذ کھولنے کے قابل نہیں. بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کا مودی کو مشورہ. لائن آف کنٹرول پر جاری طویل کشیدگی سے تنگ آئے بھارتی عوام بھی مودی کے خلاف بول پڑے. پاکستان سے مذاکرات شروع کرنے کے لیے بھارتی حلقوں میں آوازیں اٹھنے لگی. بھارتی دفاعی حلقوں میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت ایک وقت میں چین اور پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی اور کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. بھارت کو پاکستان سے مذاکرات کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. چین اور پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی سے بھارتی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہو چکی ہے. جنگی جنون میں مبتلا بھارتی سرکار کا پاکستان کے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش سے بھاگنا پرانی روایت ہے. پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو امن مذاکرات کی پیشکش کی تھی. جواب میں بھارت نے روایتی ڈگر پر چلتے ہوئے مذاکرات کی بحالی کی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا. وزیراعظم عمران خان نے بھی انتخابات میں کامیابی کے بعد اپنی وکٹری تقریر میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھارت دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے ایک قدم اٹھائے گا تو پاکستان جواب میں 2 قدم آگے آئے گا. مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں سے تنگ آئے بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت اگر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھتا ہے تو اس سے دونوں کا فائدہ ہوگا. FATF پر ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بھارت کے بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کو کسی ایک محاذ پر کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پاکستان سے مذاکرات چین کی نسبت بہتر ہیں. ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے اچھی خبر. وزارت IT کے تعاون سے پاکستان کی پہلی بلڈ لیس ڈائلیسس مشین تیار کر لی گئی. ڈائلیسس مشین سے مریض گھر میں ہی بغیر کسی جسمانی تکلیف کے ڈائلیسس کر سکیں گے. وزارت IT کے تعاون سے پاکستان کی پہلی بلڈ لیس ڈائلیسس مشین تیار کر لی گئی ہے. مشین کی تمام متعلقہ اداروں سے منظوری کے بعد اس کی کمرشل بنیادوں پر تیاری ہوگی. مشین وزارت IT کے ادارے اگنائٹ اور اینجل انویسٹرز کی مالی معاونت سے تیار کی گئی. مشین سے مہنگے طرز علاج سے نجات اور عام آدمی کو فائدہ حاصل ہوگا.
नेशनल बैंक ने 30 जून 2020 के शुमाही मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया। PKR टैक्स अदायगी के बाद मुनाफे में 15.2% से 36.8% तक इजाफा हुआ। मौसम की खबर आपको दें तो बताएं कि महकमा मौसमियात की तरफ से मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हो गए। MCI की तरफ से बड़े नालों की सफाई का सिलसिला जारी है। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। जिली इंतजामिया की तरफ से हालिया तेज बारिशों और मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर विफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया और रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ से इस्लामाबाद में बड़े नालों की सफाई का सिलसिला जारी है। MCI के तर्जमान मोहसिन शिराजी का कहना है, तेज बारिशों की सूरत में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम कर लिए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट उसको हमने 3 शिफ्टों में कर दिया है कि राउंड द क्लॉक वो मौजूद रहेंगी कि जहाँ पे कहीं बेसमेंट बनने का, पानी का या ऐसा इशू आता है तो वो घरों पे पहुंच के और पानी निकालेंगे। एक तो उनका ये हुआ, जब से ये मानसून शुरू हुआ है हम MCI के जो हमारे मेयर ऑफ इस्लामाबाद की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने नाले साफ करने शुरू कर दिए थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन इस्लामाबाद के नाले जो हैं वो साफ है। और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के तर्जमान का मजीद कहना था कि तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उन्हें 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है ताकि शहरियों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब रुक करेंगे खेल के मैदान का, तो वहां से आपको खबर दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। सीरीज बराबर होने पर पाकिस्तान और इंग्लैंड अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। मुख्तसर फॉर्मेट की पहली पोजीशन ऑस्ट्रेलिया के पास है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर होने पर इंडिया का भी ख्वाब टूट गया। इंग्लैंड की शिकस्त की सूरत में इंडियन टीम की पोजीशन तब्दील होना थी, जिसको पाकिस्तान ने तीसरे मैच में फतह से चकनाचूर कर दिया। आलमी रैंकिंग के मुताबिक पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, जिसके पॉइंट्स की तादाद 278 है। इसी तरह दूसरी पोजीशन इंग्लैंड और तीसरी इंडिया के पास मौजूद है। पाकिस्तान तीसरा मैच जीतने के बाद चौथी पोजीशन पर बरकरार है। आलमी रैंकिंग में 5वें नंबर पर जनूबी अफ्रीका, 6ठे पर न्यूजीलैंड और 7वें पर श्रीलंकन टीम मौजूद है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम T20 बल्लेबाजों की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद हैं। उनके अलावा कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 का हिस्सा नहीं। इसी तरह बॉलिंग के शोबे में अमाद 7वें और शादाब 9वें नंबर पर मौजूद हैं। ऑलराउंडर की टॉप 10 फहरिस्त में कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं। क्रिकेट का सिलसिला जहां से टूटा वहीं से जुड़ गया। मेगा इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PSL के तमाम मैचेस नवंबर में होंगे। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, क्रिकेट का मेला फिर सजने को है। And has it disappeared? इवेंट के चारों बकिया मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को लाहौर में खेले जाएंगे। 14 नवंबर को इवेंट का क्वालिफायर और एलिमिनेटर 1 का मैच होगा। इसके अगले रोज एलिमिनेटर 2, जबकि फाइनल 17 नवंबर बरोज मंगल को होगा। इवेंट के बकिया मैचेस की तारीखों को 4 टीमों मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और पिशावर ज़ल्मी की मशावरत से हतमी शक्ल दी गई है। इवेंट के बकिया चारों मैचेस कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत खेले जाएंगे, जहाँ तमाम खिलाड़ी, मैच ऑफिशियल्स और मुतल्लिका स्टाफ बाइसिक्योर माहौल में रहेगा। फिलहाल चारों मैचेस बंद दरवाजों में खेले जाने का प्लान है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला अक्टूबर में होगा। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना था कि इस ऐलान के बाद न सिर्फ तमाम कयास आराइयां दम तोड़ जाएंगी, बल्कि अब इन मैचेस की तैयारी के लिए तमाम टीमों के पास भी मुनासिब वक्त मौजूद है। वसीम खान का मजीद कहना था कि PCB शुरू से ही इन चारों मैचेस के इनेकाद के लिए पुरअज़्म था और PCB के ख्याल में PSL जैसे इवेंट का फातिह जरूर सामने आना चाहिए। अभी एक ब्रेक और फिर हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।